So here comes the first question on your screen. आसान से स्टार्ट करता हूं, ठीक है. There is a right angle triangle. There is right angle triangle. और ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है आपका, so you draw 3 semicircles, right, on the same side of this triangle. Same side पे 3 semicircles draw करेंगे. One semicircle will be like this, another will be like this, okay, and third one will be like this. Okay. Here 3 different, sides are the diameters. Did you understand that? Yes, sir. Now you have to find the area of this shaded region. If this is your 5, this is your 12, this is your 13. I know जिनको आता है वो बहुत जल्दी से कर देंगे, बाकी लोग ट्राई करें. This is the first question. जिनके लिए ये नया क्वेश्चन है, ट्राई इट होल हार्टेडली. फॉरगेट अबाउट कुछ लोगों को आता है या नहीं आता है, वो आप चिंता में नहीं जाइए, आप अपना काम करिए. Find the area of the shaded region. Quick, 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 quick. Okay, guys, now let us see this thing. So the area of this circle, this, let me call it as 1, this 2, and this 3. Area of this semicircle is equal to 1 by 2 pi r square. R is what? 12 by 2 ka whole square, right? And the area of this circle, this one is 1 by 2 pi 5 by 2, square, plus area of the triangle, which is equal to 1 by 2 into 5 into 12, minus area of this portion, which is 1 by 2 pi, 13 by 2 whole square. So if we see all this will go away with each other because of the Pythagoras theorem, because 12 square plus 5 square is equal to 13 square. So this will become 0. So this is equal to area of the triangle. So shaded region is equal to area of the triangle. Area of the triangle. Did you get it, everyone? And this is true for right angle triangle, because in right angle triangle, this angle will be 90 degree. And from here, you can very well draw this, what we call it as radius. और ये वाला जो है सेमी सर्कल के अंदर बनी हुई हर एक ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल होती है. एंड दिस इज अ रियल कैट क्वेश्चन. इट्स ए रियल कैट क्वेश्चन, गाइस. सो आई होप एवरीवन गॉट इट. ओके, क्वेश्चन और देता हूं. सेकंड क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा बेटा. वी हैव ए स्क्वायर एंड उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया? एक और स्क्वायर बना लिया. फिर क्या किया? उसके जो स्क्वायर है उसके अंदर एक सर्कल बना दिया और उस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया. ठीक हो गया भाई? देयर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इनसाइड दैट. ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल. The outer side is A. Your time starts now. Outer side is A. Find the area. You can take A is equal to 14 just for your convenience. Those who want to, ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे, 2A and 2B. एक में A लेके करो, एक में A 14 लेके करो, फटाफट.
1 minute up. Very good. फटाफट फटाफट, किसी ने भी आंसर नहीं दिया अभी तक। सारा नजला खांसी जुकाम दूर हो जाएगा ये क्वेश्चन करने से, because this question contain almost all the concepts of embedded figure. So 2 minutes up. Let us see how we can do this question. इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, देखते हैं भाई सब। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या है भाई आपका, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? इफ दिस इज ए, हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी? A by 2. A by 2 sir. ए बाय √2. √2 बेटा, हाफ थोड़ी होएगी, एरिया हाफ होता है, साइड थोड़ी हाफ होती है। बोलो। Yes, Yes. This is a by √2, so the radius is going to be a by 2 √2. Yes, sir. Yes. Radius is half of side. Bolo. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Now this radius is going to be capital R of this circle. Yes, sir. So we know capital R is equal to √3 by side by √3. √3. Yes, we know this relation. Yes. Yes, sir. So if you know this relation, so you know R is equal to this, right? So what will be S equal to? A into √3 upon 2 √2. Now I know you all know into square into √3 by 4. So this is 3 √3 upon 32. A square. That's it. Right? Yes, sir. तो ये तो इस तरह का क्वेश्चन करने से आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो गए। एक तो ये फंडा बहुत काम आता है हमें, व्हाट इज R इक्वल टू S अपॉन √3 इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑब्वियसली स्मॉल r इज इक्वल टू S अपॉन 2 √3 and altitude is equal to √3 by 2 S. Side. Right? So ये बेसिक चीजें हैं भाई, ये तो सबको आनी चाहिए। दिस इज ए रिलेशनशिप ऑफ ट्राइंगल एंड अ सर्कल, ट्राइंगल एंड ए सर्कल। और स्क्वायर उसमें क्या होता है? स्क्वायर उसमें हमने देखा है कि भाई स्क्वायर टू स्क्वायर जो एरिया है, स्क्वायर टू स्क्वायर एरिया हाफ हो जाता है और सर्कल टू सर्कल एरिया हाफ हो जाता है। In case of a triangle to circle to triangle, area 1/4 हो जाता है। Yes, no? Yes, sir. In case of a hexagon, area 4:3 रहता है। 4:3. Yes, sir. Hexagon to hexagon and circle to circle, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कुछ और आएगा नहीं, आएगा तो मौके पे देख लेंगे भाई क्या आ रहा है आपका। ठीक है? Yes, sir. Okay, here comes this the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी क्या कहता है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक सर्कल है और उसके बाहर में हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। ठीक है, कैन वी ड्रॉ दैट स्क्वायर? यस। तो यहां पे एक पॉइंट है, देयर इज ए पॉइंट P, हियर इज ए पॉइंट P। ठीक है, this distance is 2 and this distance is 9, right? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Find the radius of circle. ये A पार्ट हो गया, B area of circle, C area of square, D area of शेडेड रीजन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, उस तो बाद में अलग क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आया ना? सो दीज आर द डिराइव्ड क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग?
बेसिकली अगर आपको आर पता चल जाए तो सारी कहानी हो जाएगी। फटाफट गिव मी द आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट्स अप। सो इस क्वेश्चन को मेरे पास अरिंदम खान का आंसर आया है जो कि सही है, शाश्वत दीक्षित का आंसर सही आ गया, और किसी का भी आंसर सही नहीं आया अभी तक। 100 लोगों में से सिर्फ 2 ही लोगों ने आंसर सही दिया है। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगनी है मेरा राजा। कोई भी मेरा जो रेडियस जाएगा वो ऐसे जाएगा, ठीक हो गया? बोलो कहीं से Yes, sir. Yes, sir. तो इसको ऐसे रेडियस बन गया, ये भी हमारा रेडियस हो गया यहां से, और इसका यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लो, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो कैन यू टेल मी दिस लेंथ r? Yes. r-9। R-2. बस इतनी सी कहानी है यार, और ये इसके जैसा क्वेश्चन कैट में आया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट डिट्टो क्वेश्चन अपीयर्ड इन कैट। r² इज इक्वल टू r-9 का स्क्वायर प्लस r-2 का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट आते हैं आप सीधा वहां से भी लगा सकते हैं, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। r² प्लस 81 माइनस 18r प्लस r² माइनस प्लस 4 माइनस 4r, ठीक हो गया बेटा। r² गया, और ये आ गया r² माइनस 18r प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो -22R. -22R. क्या हो गया, हमने -22 क्यों कर दिया? अच्छा ये Four भी -4r, है sir. सॉरी हाँ. सॉरी सॉरी सॉरी, -22r, ये 4r तो नीचे रह गया था। -22, 17 और 5 आ जाएगा, r इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 17। r 5 हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये 9 है, सो विल टेक r इज इक्वल टू 17। आंसर आ गया भाई। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या कि 2 ही लोग आंसर करेंगे 100 में से, ठीक है। समझो थिंग्स, और ये पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लगा लेना है आपने, ठीक है। उसी में से जो कॉन्सेप्ट है दे आर मोर देन एनफ फॉर यू टू यू नो, आपको घुमाने के लिए वो काफी रहते हैं, उससे ज्यादा उनको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो एक और कॉन्सेप्ट देता हूं। 4th क्वेश्चन, एक क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, क्यूब ऑफ साइड, ठीक है। आपने को पता होगा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, यहां से लेके यहां पहुंचने का रास्ता क्या है? Yes, sir. Yes, sir. क्या था? Tank वाला 10√5, √3 है। मतलब √5 नहीं बेटा जी, √3 है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, वो तो एरियल रूट हो जाएगा। एरियल रूट विल बी √3a, वो तो थ्री डायगोनल हो जाएगा ना सर, √3 डायगोनल हो जाएगा, एरियल रूट बोलते हैं उसको। ये जो फिजिकल डिस्टेंस है अलोंग द एजेस दैट विल बी 30, बट जो शॉर्टेस्ट होगा अलोंग द सरफेस वो ऐसे जाएगा, यहां से आप यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे, तो ये बॉक्स ओपन करके आ जाता है आंसर 10 रूट, मतलब a √5 आ जाता है। Yes, sir.
ठीक हो गया, ये करवाया हुआ है, बहुत डिटेल में करवाया मैंने yes, ये। sir. आपने Yes, नहीं sir. किया तो फिर भाई आपकी नलायकी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बंदे को यहां नहीं पहुंचना है, ए पॉइंट से ई पॉइंट पहुंचना है, ठीक है, ए टू ई। व्हाट विल बी द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ए? फटाफट। Sir, E जो है वो मिड पॉइंट है. E is the midpoint of this length. Opposite corner से E distance दूर पहुंचना है, हाफ है ये। E is the midpoint of, let us say, BC. फटाफट। Sir, 2 minutes up. 2 minutes up। देखो भाई, ये A हो गया, ये A हो गया, ये A/2 हो गया। जब आप बॉक्स ओपन करेंगे, क्या करेंगे? बॉक्स ओपन वाला फंडा लगता है ना इसमें, Yes, sir. ठीक है। तो बॉक्स ओपन करके आप क्या देखेंगे कि यहां तक पहुंचना है हमें। सो इसको खोल लीजिए। सो आपका जो डिस्टेंस लगेगा, कितना लगेगा? √17 a/2. नहीं, कितना कितना आएगा? एक साइड कितना आएगा, दूसरी साइड कितना एक आएगा? साइड 2a 2a और आएगा, a/2. a/2 एक आएगा, उसका साइड आएगा hypotenuse 2a और एक साइड आ जाएगा a/2। a/2. ठीक है, yes sir. बेसिकली उसने यहां से यहां जाना है, ठीक हो गया, और फिर यहां से यहां बीच में से कहीं कहीं से जाना है ऐसे। हो गया। Yes, sir. Sir. सो इसको हम अगर इरेज कर दें यहां से, ये वाला इरेज कर देते हैं। नहीं, इतना नहीं इरेज करना। हाँ, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्या ये दोनों सेम आएंगे? एफ पे पहुंचना और ई पे पहुंचना, विल दैट बी सेम? No, sir. Yes, नहीं sir. सेम आएगा। Yes sir, Yes, sir. same Sir, होगा. yes, sir. देख लो। Sir, same होगा अगर दोनों Same होगा, mid points हैं तो. क्यूब होगा तो सेम होगा सर। Same देखो होगा। क्यूब है, सेम आएंगे सर। पक्का? सर अगर E और F दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो पक्का हाँ, सर दोनों same मिड है. पॉइंट है। हाँ दोनों मिड उसका पॉइंट, क्योंकि सर same ए ही से आएगा. एफ जाएंगे तो भी इस साइड ए की साइड से दूर है, और ए से ई जाएंगे तो नीचे वाली साइड से दूर है, तो सेम डिस्टेंस ही जाएगा। चलो, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों सेम नहीं आएंगे, तो साइड्स डिफरेंट आ रही है ना, है ना? उसमें 3a/2 3a/2 है। क्योंकि अगर हम इधर से जाएंगे, लेट अस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसका, ठीक है, सो इफ यू मीट इट फ्रॉम हियर, यहां से इसको आप मीट कराते हैं तो ये 1.5 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। Yes. ठीक हो गया? Yes, sir. 1.5 एंड 1, ठीक है? समझ आया या नहीं आया? यस सर। सो ये 1.5 और 1, और दूसरा बनता है आपका 0.5 और 2। यस, इस केस में ये बन जाएगा 2.251, 3.25 √a, और इस साइड में बन जाएगा ये 4.25 √a। समझ आया? नहीं सर. यस नो सर। सर, सही से समझा दो।
देखो हमने 2.5 डिस्टेंस ट्रेवल करना है अगर हम एज के अकॉर्डिंगली चले। इसको ना शेडिंग में ठीक बनाता हूं थोड़ी सी, एक मिनट, सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। हमारे को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना वो 2.5 डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं लेंथ वाइज। यस सर। ये थोड़ा क्यूब लगेगा, इल्यूजन नहीं आएगा, पहले बीच में ना इल्यूजन आ जाता है, क्यूब में वो नजर आना बंद हो जाता है। ठीक है, बोलो भाई, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। तो आपने कहां से कहां जाना है? ए से ई जाना है। यस सर। सो ए टू ई जाने के दो तरीके हैं। एक तो आप वाया ये वाली रोड से जाएंगे, मतलब इट्स लाइक वन इज दिस, यू गो इट लाइक दिस, राइट? यहां Yes, से sir. मतलब नॉट एग्जैक्टली मिड पॉइंट, खोल के इसको जहां भी आएगा वहां पे जाएंगे आप। ठीक है, मिड पॉइंट से थोड़ा इधर आ जाएगा। बॉक्स खोलना है ना आपने? यस सर। बॉक्स दो तरीके से खुल सकता है, एक ये वाला बॉक्स ओपन हो सकता है, एक ये वाला बॉक्स ओपन हो सकता है। ये वाला इधर बॉक्स ओपन होगा, ऐसा लंबा हो जाएगा ना ये। यस सर। So it will come here. ठीक है? यस सर। जी सर। So this is the distance. Did you understand that? यस और सर। अगर इधर ओपन करोगे, ऐसे ओपन करोगे तो यहां आ गया। So this is the distance. यस सर। यस सर। ठीक है? So this is 1 length and this is 1.5 length. यस सर। हो गया? हाँ जी यस सर। अब अगर यहाँ पे पहुंचना है, F पे पहुंचना है आपको, so the box will open like this, ऊपर को ओपन हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे ओपन कर दोगे। ठीक है, so when you will open it here, so what you will get is you will get 2 lengths and a half length. ठीक है, 2 length and a half length. ये बॉक्स इधर ओपन होगा, तो दिस इज एफ पॉइंट। समझ आया? यस सर। जब ये मैंने फेस ओपन कर दिया, ये वाला हाँ, फेस yes, sir. फेस है। ठीक है, सो इस फेस पे इफ यू आर रीचिंग हियर, सो यू रीच लाइक दिस, इफ यू रीच हियर यू रीच लाइक दिस। तो यहां पहुंचने के फिजिक मतलब लीनियरली तो 2.5 इधर है, 2.5 इधर है, बट हियर यू हैव कवर्ड 1 and 1.5, हियर यू हैव कवर्ड 2 and 0.5। यस सर। F5 का आंसर आएगा आपका, जो आप बोल रहे थे, √17/2a। ठीक है, whereas this is going to be your √13/2a। okay, सर हम इस केस में वैसे दोनों तरीके से नहीं देख सकते। अगर हम F वाली जो साइड है सर उसको लेफ्ट साइड पर ओपन करते हैं तो वो भी तो 1.5 और 1 का केस नहीं बनेगा। यस सर। F को अगर आप लेफ्ट साइड ओपन लेफ्ट करते साइड हैं, पर open करते हैं। एक मिनट हम सारा क्लियर कर देते हैं। सर जैसे ई पे जाने के लिए राइट साइड से ओपन कर ले और एफ पे जाने के लिए लेफ्ट साइड से ओपन कर ले। अच्छा, ये इसको अगर हम इधर को ओपन कर देंगे, इधर को हाँ जी सर। यस सर। ऐसा ओपन कर देंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये वाला जो रहेगा 1.5 रहेगा, ये 1 रहेगा। तो इसका भी 13√13/4 आ जाएगा, by 2 आ जाएगा। यस। डिपेंड करता है आप ओपन किधर को कर रहे हैं। ठीक है ना? सो ऑब्वियसली यू विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट विल कम लाइक दिस वन। ठीक है,
ये कल ही मेरे दिमाग में आया, व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चंस नो, आई सेड कि भाई ये वाला तो करा दिया हमने, ये तो अब रट्टा मार लिया लोगों ने, सबने, नहीं समझे? बोलो। जी सर। यहां से यहां जाने वाला तो अब पता चल गया ना, गली गली में शोर है कि ये रूट 5 है, ठीक है। अब यहाँ वाला देखो क्या कहानी बनती है, ठीक है। इसमें आपने देखा जैसे कि दो कहानी बन गई इसमें, ठीक हो गया मिड पॉइंट पे आने के लिए। यस सर। तो a रूट 13 बाय 2 आ गया ये आपका, ठीक हो गया। चलो, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। चलिए, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5। देयर इज ए कोन, कोन के अंदर एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, उसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके नीचे बची जगह में एक और बॉल डाली और उसके नीचे एक और बॉल है, ठीक है। इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस बॉल। थर्ड बॉल, फटाफट। सर कोन का कोई रेडियस और हाइट नहीं दिया हुआ? कुछ नहीं दिया हुआ, नथिंग इज गिवन। I think it is 4. तुक्का नहीं मारना है, देखो भाई। Yes, sir. हाउ यू गॉट द आंसर अतुल भाई? 40% हो रहा है ना आई गेस, हाँ, तो वही रिलेशन छोटी वाली बॉल में लगेगा तो उसकी वजह से 4 हो जाएगा। भाई चलो ऐसा कर लेते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन R1, R2 एंड R3। ये भी ठीक है। कितना टाइम हो गया भाई? 2 मिनट्स हो गए। 2 मिनट्स हो गया। चल, इसको थिंक इट लाइक अ 2D शेप। हाँ, क्रॉस सेक्शन से देखते हैं तो ये नजर आ रहा है, ये दिस इज, कैन यू सी दिस? सो क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगी तीनों? यस सर। तीनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी। सो तीनों अगर सिमिलर ट्रायंगल होंगी, सो इनका जो ये वाला डिस्टेंस है, दिस एंड दिस विल बी प्रोपोर्शनल। बोलो। यस सर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको एक मिनट, नहीं 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 ऐसा नहीं करना। इसको अगर आप देखेंगे, यहां से पैरेलल ड्रॉ कर लो लाइन, यहां से पैरेलल ड्रॉ कर लो, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट? R1 plus 35. R2? यस सर। Yes, no? And this distance is what? 25. R1 minus R2. minus R2. Yes, no? Yes, sir. अब इसमें देखो, ये वाली ट्रायंगल में देखो, R2 plus R3 डिवाइड बाय
R2 minus R3. R2 minus R3, R3 बेटा, ये वाली ट्रायंगल, ये R3 है ये वाला। Distances, yes, Yes, sir. ठीक है। बस अब इस पे लगा दो, आप इसको सॉल्व कर लो। इसको डिविडेंडो कॉम्पिडेंडो से भी कर सकते हो और सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3 और R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, R1. यस, और दे आर इन अ proportion. जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, ठीक है। एक बार रिपीट कर दो सर, ये कैसे लिखे आपने यहाँ पे? ये बेटा डिविडेंडो कॉम्पिडेंडो लगाया, ठीक। ठीक है। बाकी ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैं आपको देसी फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। लेट अस अज्यूम इट टू बी एन इनफाइनाइट कोन। कैन वी अज्यूम इट टू बी एन इनफाइनाइट कोन? Yes. sir. If you cut it from anywhere to any two cubes, any two balls, they will all have same relation, shouldn't they? Yes, sir. बस वही आंसर आ गया। कौन है ना, कौन सिमिलर रहती है ना, कहीं से भी कट करेंगे सेम रहेगी, सिमिलरिटी थ्योरम लग जाएगी। यस सर। तो जो इसका और इसका जो रिलेशन है वो इसका और इसका रिलेशन है, इट मींस दे आर इन ए जीपी, राइट। इसकी और इसकी जो रेशियो है वही इसकी इसकी रेशियो है, सिंपल आ गया। अदरवाइज आई हैव प्रूव्ड आल्सो, ठीक हो गया। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 6। 4 है सर आंसर इसका? हाँ बेटा 4 आ जाएगा। 25 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन x, 4 आ गया। एक आपका स्क्वायर है, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका वैल्यू है 30 एंड 40, ठीक है। तीसरी साइड में लिख नहीं रहा, बस आपको खुद पता ही है, आप जानी जान लोग हैं। 50, सो इट इज रोटेटेड अराउंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शेप thus generated, ठीक हो गया। हाइपोटेन्यूज के अराउंड इसको रोटेट किया गया, गोल गोल घुमाया गया। Sir, 2 minutes up. 2 minutes up। सर 1 मिनट उसको हो गया। और ले लो, 1 मिनट और ले लो। Sir, bonus minute up. ओके चलो जी। तो जो हमारी शेप है वो क्या है, 30 40 50 है। तो कुछ ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ठीक हो गया।
दो कोन बन जाएंगे, देयर विल बी टू कोन्स. Yes, sir. Yes, sir. So this is, you know, how much is this? 40. Yes, sir. This is 30. Okay. So ये वाला जो पार्ट है आपका डांस ट्रायंगल से निकल आएगा 30 into 40 divided by 20. How much is that? 30 into 40 divided by 50. 24. तो ये वाला 24 आ गया, राइट? बोलो. Yes, sir. ये वाला कितना आ जाएगा? 5, 3 और 8. 8 5 8 36. No. 32 और 18 आ जाएगा. ये 18 आ जाएगा. Now the volume of this is 1/3 pi r square, 24 square into 32, right? Yes, sir. Plus 24 square into 18. So 1/3 pi 24 square into 50. Bolo. Yes, sir. Yes, sir. So it will become 1/3 into pi into 400. 24 into 1200. Yes, Yes, sir. sir. 960 किया है तुमने. सर 960 Yes, sir. अच्छा टाइप करने में गलती हो गया. ठीक है. 9600 पाई. तो अब अगर इसको देखें अगर हम, अब इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करोगे अगर आप, तो देखो क्या बनता है आपका. ये 1/3 तो वही आ रहा है, पाई तो वही आ रहा है, आर स्क्वायर, आर कहां से आ रहा है? दिस इज a इंटू बी अपॉन सी का होल स्क्वायर इंटू सी. Yes, no? Yes, sir. So this comes 1/3 pi a into b upon c का ऊपर वाले का स्क्वायर. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. बन गया ना? तो ये हो गया 1200 into 1200 upon 50 into 1/3. 40 आ गया और ये 24 आ गया. बोलो. समझ आया भाई, नहीं आया? Yes, sir. ठीक. अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम में नहीं आएगा, घर के लिए देता हूं. कि राहुल भैया हैं, उनके पास एक मोबाइल है. राहुल भैया के पास क्या है? एक मोबाइल है. और वो मोबाइल ऐसा है 3 इंच बाय 4 इंच. ठीक है. तो उन्होंने मोबाइल के इस कंधे को और इस कंधे को एक धागे से बांध दिया, ऐसे खींच के. ठीक है. बोलो. Yes, sir. और गोल 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 घुमा दिया. ठीक हो गया? Yes, sir. तो जो शेप बनेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? घर के लिए क्वेश्चन है ये. आराम से करना, एग्जाम में आएगा तो बहुत टाइम खा जाएगा, बट इससे काफी फंडे क्लियर हो जाएंगे. एंड सेंड द आंसर इन द चैट बॉक्स और योर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे. ठीक हो गया? चलें आगे. Yes. क्वेश्चन नंबर 8. एक सॉलिड स्फीयर है. ठीक है. सॉलिड स्फीयर है. इट इज कट इनटू 12 pieces, each of same shape and size. ठीक है.
percentage increase in surface area. Easy question. Percentage increase in surface area. फटाफट. Only 8 has answered. 2 minutes up. 2 minutes up. देखो, existing surface area is 4 pi r square. Every piece comes out with 1 pi r square extra area. So 12 pieces will add 12 pi r square. The new area will become 16 pi r square. The increase is equal to 300%. ठीक है, ये ध्यान से कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एक कट होता है, ऐसे कट करके ना एक ऐसी शेप बन जाती है. ठीक हो गया. तो ये वाला जो एरिया है ये नया आया. वाटरमेलन खाते हो ना, वाटरमेलन का पिक्चर देखा है फिल्मों में. पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाता है सर. हाँ, तो हाफ पाई आर स्क्वायर इधर एक्स्ट्रा आ जाता है और हाफ पाई आर स्क्वायर इधर साइड एक्स्ट्रा आ जाता है. तो टोटल पाई आर स्क्वायर नया एरिया नजर आ जाता है आपको. ठीक है, चलो एक मजेदार क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा ज्यादा मजेदार है. ये एक पिंजरा है. क्या है? एक पिंजरा. चलो इसको डिलीट कर दो. केज, केज समझते हैं, जिसमें उसको रखते हैं. ऐसा मान लो. ठीक है. सो ये सेंटर में एक चींटी है. चींटी समझते हैं? वो बेचारी चलती 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 यहां गई, यहां से वो यहां गई ऊपर. ठीक है, और यहां पहुंची थी, यहां से गिर के फिर अपने आप जगह नीचे आ गई. ठीक हो गया? यस सर. इस पूरी प्रोसेस में उसने 482 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. कितना? 482. इस केज का वॉल्यूम बताइए क्या है? सर ये हेमिस्फीयर है ना, एलिप्टिकल जी नहीं, बिल्कुल हेमिस्फीयर है. ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, या ऐसा कह सकते हैं एक कटोरी है. आपको एक चींटी मिली, हमारे राहुल भैया को, उन्होंने चींटी पे ऐसे डाल दिया और उसके टॉप पे ऐसे 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 चीनी लगा दी थोड़ी सी, और चींटी को उल्टा कर दिया. तो चीनी ऐसे गई चींटी, और यहां खाई और नीचे फिर गिर गई. ठीक है, तो चींटी ने 482 डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है,
तो रेडियस इसका वॉल्यूम बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी बोलो, जब टाइम अप हो जाए बताइए मेरे को। Let me know when time is up. Yes, sir. Sir, 2 minutes up. कितनी जल्दी दिन ढलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। This will be R, this will be R, this will be Pi how r by much? 2. IR by 2. Pi R by 2। ठीक हो गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 22 by 7 R plus R plus R, नहीं by 2 भी आएगा, ठीक है। Yes. This is equal to 482. So 11 by 7 हो गया, 25 by 7 R हो गया, हाँ sir. तो R is equal to 135. 482 into 7 divided by 25। 135. एग्जैक्ट आ रहा है अप्रोक्सीमेट आ रहा है? Sir, 134.96 है exact. हाँ, तो we can say 130। Fine. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 नहीं 2 by ये होता है 2/3 2/3 पाई R3 cube. 135 का क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है, तो इसको कैसे भी कर सकते हैं, इसको मतलब बात समझने की है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? सर हमने प्लस आर क्यों किया? सर, जब वो पाई तीन- आर स्क्वायर ये है। डिस्टेंस ये है, ये हाइट है, ऊपर सर, से ऐसे नहीं गिरी ना होता? चीटी नीचे। यार सीधा नहीं हो सकता पाई आर बाई 2 इज इक्वल टू 482 सर मैंने भी यही किया था। पाई आर 2 इज इक्वल टू 4। पाई आर बाय 2 नहीं, ये थोड़ी 482 है, टोटल डिस्टेंस 482 है ना, यहाँ से यहाँ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई। सर ये क्वाड्रेंट हो जाएगा क्या? एक क्वाड्रेंट मान सकते हैं इसको? नहीं, क्वाड्रेंट क्यों मानना है यार, स्फेरिकल है ना, समझने की कोशिश करो। दिस विल बी अलोंग द सर्कल। ठीक है, ज्यादा क्या हो सकता है, एक यहाँ रख दिया, एक चीटी यहाँ पे है, और एक बॉक्स यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, दो, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। ये ज्यादा मजेदार, मैं 5 रख देता हूं। ठीक है ना? ठीक है, बोलो। यस सर। ये पांचों पिक करने हैं उसको। नाउ द टेल मी द डिस्टेंस। ठीक हो गया क्वेश्चन? यहां से चल के यहीं वापिस आना है चीटी को सेंटर से, ठीक है, और पांचों शुगर क्यूब्स पिक करने हैं उसने। ठीक है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन टर्म्स ऑफ आर। हो सकता है क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, शी कैन शी कैन ट्रेवल अलोंग द सरफेस, राइट, बट शी कैन नॉट ट्रेवल इन एयर। ठीक हो गया? हवा में नहीं उड़ सकती है चीटी, कहां जा सकती है? Surface पे. 10th क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास, अगेन मस्ट डू क्वेश्चन। एक स्क्वायर शीट है ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से ये कट करके क्या बनाना है? ओपन बॉक्स बनाना है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स।
ठीक हो गया भाई? यस सर. Maximum possible volume of this box. Two minutes up. दो मिनट हो गए पूरे. किसी का आंसर आया कोई? तान्या शाह कैसे आया आपका आंसर? हरप्रीत सिंह कैसे आया भाई आपका आंसर? सर बेसिकली 2-3 पहले वैल्यूज दिए, मतलब पहले 2 यूनिट का दोनों साइड से काटा तो बीच में 20 का बचता है, तो 20 into 20 और जो हाइट होगी बॉक्स की दैट विल बिकम 2, सो दैट्स 800. फिर 3 का किया, 4 का किया और फिर 5 का किया, तो इट इज मैक्सिमाइजिंग एट 4. So when 18 into 18 into 18 into 18 into 3, then the volume is 972. But when you take 4 units, then it is 16 into 16. It is 14 into 14 into 5. Then the volume is 980. Okay, so this is a very quick, easiest approach to this question. Second approach can be you take it as x, this is as x, right? समझ आया? So what you see is this will be 24 minus 2x का whole square into x is equal to maximum. ठीक है? बोलो भाई. Yes sir. इसको डिफरेंशिएट कर दो 2 बार. ठीक है, पहले वाला पॉजिटिव 0 आना चाहिए, दूसरे वाला नेगेटिव आना चाहिए. ठीक है, वो भी एक मेथड है. अनदर मेथड इज, देखो मेरा ये यहां से 1 कम हो रहा है, यहां 2 जा रहा है हर एक में. बोलो. यस सर. ठीक है. कैन आई से कि 20 plus 20, तो ये 24 minus 2x कर दो. क्या आ गया ये? What is 24 minus 2x? 20. My length, no? साइड आ गई सर. What is 24 minus 2x? Breadth? Yes sir. Yes, sir. But the sum of this is how much? 48 minus 4x. Bolo, sum of this. Yes sir. I will multiply it by 4x. Right? Bolo, hi na? Now, product of 3 numbers where sum is equal to 48. Sum of these 3 numbers is equal to 48. This is the product of 3 numbers, no? Yes sir. Yes sir. इसमें और इसमें सिर्फ 4 का ही फर्क है ना.
सो जो भी ये प्रोडक्ट आएगा उसको 1/4 कर देंगे, मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। यस सर। तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज मैक्सिमम हुज सम इज कांस्टेंट व्हेन ऑल आर इक्वल। 16 16 16। द आंसर इज 16 into 16 गुना 4, 1024। Got it? Yes, sir. So this is how you can understand this type of questions. ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाता, यहाँ 26 हो जाता, तो x फ्रैक्शन में भी आ सकता था। तो क्या करते हम? 26 minus 2x, 26 minus 2x into 4x. into 4x. How much it gives me? 52. तो 52 divided by 3. How much is x? x 52 by 3 आ गया? 17.33. So this value is 52 by 3. So 52 by 3 into 52 by 3 into 52 by 3 into 1/4, that is my volume. Right? Yes sir. Yes sir. अगर ये 27 होता, 27 तो ये हो जाता 54 by 3. Right? Yes. 54 into 54 divided by 3 divided by 3 into 54 by 3 into 1/4. 18 into 18. 9 81 into 18. How much is that? ठीक हो गया? Yes बोलो sir. भाई। Yes sir. सो अगर आप ये देखें, इफ लेंथ इज L, सो व्हाट इज दिस? 2L डिवाइड बाय 3 का क्यूब 1/4, राइट? Yes sir. बोलो। यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे पता चला था? अरे इक्वेट करना था ना, इसका सम कांस्टेंट करना है ना। अच्छा फिर उससे तो माइनस। दिस इज 2L क्यूब बाय 27 इज द आंसर। सर ये 54 मतलब ये 27 into 2 क्यों कर रहे हो आप? कैसे? जो ये आपने इक्वल्स टू 54 लिखा है ना, हाँ, वो मतलब 54 कहाँ से आया? सम है ना इनका 54। अच्छा इन तीनों नंबरों का सम है 54। ठीक है सर, ठीक है। Sum of the numbers is 54, which I need to divide among 3 equal parts. तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक हो गया? ये कहीं किसी किताब में नहीं दिया हुआ है, अभी अभी बनाया ये मैंने। लास्ट ईयर सिर्फ यहीं तक करवाया था, आज चलो ये भी एक्स्ट्रा हो गया साथ में। ठीक हो गया? Yes sir. चलो जी। डन है। वीडियो पे आ जाओ। 10 में से कितने कितने क्वेश्चन सही हुए बताओ फटाफट मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें मैंने स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन वो आपको आते हैं, वो मैंने कन्वर्ट नहीं करवाए आज, कि एक उसको बॉल को मेल्ट किया और वो फिर नई बॉल बना ली, उसमें वॉल्यूम इक्वेट करना है। ठीक है, दैट यू गाइज ऑल नो इट। ये सारे वो क्वेश्चन थे विच यू कैन एक्सपेक्ट इन कैट, एंड दिस यू कैन लेबल इट एज मस्ट डू क्वेश्चंस, राइट? और सब कॉन्सेप्ट बेसिक उठाए हैं हमने, कोई भी रट्टा मारू कॉन्सेप्ट नहीं उठाया मैंने इसमें। ठीक हो गया? ओके, बाय बाय। कोई सवाल, कोई प्रश्न है पूछ सकते हो।